Question number 8, part 3. ABC Limited availed maintenance and repair services from Jaggi Motors for a truck used for transporting its finished goods. Answer to it is, on a conjoint reading of section 17.5a and 17.5ab, it can be concluded that ITC is allowed on repair and maintenance services relating to motor vehicles which are eligible for input tax credit. Further, as per section 17.5a, ITC is allowed on motor vehicles which are used for transportation of goods. Thus, ITC on maintenance and repair services availed from Jaggi Motors for a truck used for transporting its finished goods is allowed to ABC Limited. इसमें बोला कि सेक्शन 17.5a और 17.5ab को जब एक साथ रीड करते हैं तो इट कैन बी कंक्लूडेड, ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट आईटीसी इज़ अलाउड ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज. रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज पे आईटीसी अलाउड होता है मोटर व्हीकल से रिलेटेड विच आर एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका आईटीसी ले सकते हो आप. फर्दर, एज पर सेक्शन 17.5a, आईटीसी इज़ अलाउड ऑन मोटर व्हीकल्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. 17.5a बोलता है कि जो मोटर व्हीकल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज़ होते हैं उसी का आईटीसी मिलेगा. और इस क्वेश्चन में क्या था कि एबीसी लिमिटेड ने मेंटेनेंस रिपेयर मेंटेनेंस का आईटीसी ले लिया था फॉर जग्गी मोटर्स फॉर अ ट्रक विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इट्स फिनिश्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक यूज़ हो रहा था, इसीलिए इसका आईटीसी आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. ऑन 25 August, Messrs. Agrawal and Agrawal, a registered supplier of taxable goods located in Bangalore, Karnataka, purchased one machine for rupees 12,39,000 including GST from one supplier of Maharashtra who issued the invoice on the same date. उसी दिन invoice भी दे दिया. Messrs. Agarwal and Agarwal put the machinery to use on the same day and availed ITC for the eligible amount. Messrs. Agarwal and Agarwal used the machine in the process of manufacture of taxable goods. However, Messrs. A&A sold this machine to Mr. Suresh of Andhra Pradesh on 20th of August of next year for 7,50,000 excluding GST. With reference to section 18.6, determine the amount payable if any by Messrs. A&A at the time of sale of the machinery. Note, applicable rate is 18%. क्वार्टरली आप देखोगे हर एक क्वार्टर का 5% माइनस कर देंगे जितना आईटीसी जितने क्वार्टर्स इलैप्स्ड हुए हैं, और बाकी का आईटीसी रिवर्स हो जाएगा और उसको पे करना पड़ेगा इन लोगों को in the month which they have sold the machinery. Answer number 9. As per section 18 subsection 6, if capital goods or plant and machinery on which ITC has been taken are supplied outward by a registered supplier, he must pay an amount that is higher of the following. First, ITC taken on such goods reduced by 5% per quarter of a year और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर सच गुड्स. इशू ऑफ इनवॉइस के डेट से लेंगे. हाँ, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच आउटवर्ड सप्लाई डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, विच एवर इज़ हाइयर वो आपको पे करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग द अबव amount payable on supplying of machinery by Messrs. A and A shall be computed as follows. ITC taken on such machinery 12,39,000 इंक्लूडिव ऑफ GST था, 18% है तो इंटू 18 बाई 118 हो जाएगा. तो ITC आ गया 1,89,000. उसमें से आप रिड्यूस कर दोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी रिवर्स एट द रेट 5% पर क्वार्टर फॉर द पीरियड ऑफ यूज़ ऑफ मशीनरी. इसमें बिल दिया था आपको 25 अगस्त को. सो 25 अगस्त से अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया. दूसरा क्वार्टर ये आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर. तीसरा जनवरी फरवरी मार्च. चौथा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त. 5 क्वार्टर हो गए. तो 1,89,000 इंटू 5% इंटू 3 क्वार्टर्स इंटू 2 क्वार्टर्स. एक ही बार में 5 निकाल देते सीधा इंटू 5 करके तो भी वही आ जाता. ठीक है. अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड, जो इसका डिफरेंस होगा दैट इज़ 1,89,000 माइनस 28,350 माइनस 18,900 विच इज़ 141,750. ये हो गया आपका ए वाला पार्ट. अब दूसरा वाला पार्ट क्या है कि आपने सेल किया 7,50,000 में एक्सक्लूडिंग GST. अभी 7,50,000 पर 18% GST निकालो, वो आएगा 1,35,000.
तो 1,35,000 तो लोअर है, तो 141,750 आपको पे करना पड़ेगा towards disposal of machinery as it is higher of A and B. Thus, Messrs. A and A is required to pay an amount of 141,750 at the time of sale of machinery. In the above solution, amount payable towards the disposal of machine has been computed on the basis of Rule 40 sub Rule 2, that is ITC to be reversed for the period of use of capital goods or machine has been computed at the rate 5% for every quarter or part thereof from the date of the issue of invoice. However, the said amount can also be computed in accordance with Rule 44 sub Rule 6, that is ITC involved in the remaining useful life in months of the capital goods or machine can be reversed on pro rata basis, that is taking the useful life as 5 years. 5 साल भी ले सकते हो आप यूजफुल लाइफ, उसके हिसाब से आप फॉर द पार्ट ऑफ द पीरियड वैसे आप ITC रिवर्स कर दो. Next is question number 10. Krishna Motors is a car dealer selling cars of an international car company. It also provides maintenance and repair services of the cars sold by it as also of other cars. It seeks your advice on availability of ITC in respect of the following expenses incurred by it during the course of business operations. First, cars purchased from manufacturer for making further supply of such cars. 2 of such cars are destroyed in accident while being used for test drive by potential customers. Second part, work contract service availed for constructing a car parking shed in its premises. इसको नहीं मिलेगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी है. आंसर नंबर 10. As per section 16 subsection 1, every registered person can take credit of input tax credit on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business. However, as per section 17(5), ये जो 16(1) है ना, इसमें ये वाली लाइन हमेशा आती है कि for the intended to be used in the course of furtherance of his business. Used or intended to be used for course or furtherance of business. फिर है 17(5) blocked credit specifies certain goods and services on which the input tax credit is not available. In the light of the foregoing provisions, the availability of the ITC in respect of the various expenses incurred by Krishna Motors is discussed below. Section 17(5)(a) specifically blocks ITC on motor vehicles for transportation of passengers having approved seating capacity of not more than 13 persons. मतलब 12 के ऊपर होता है तो 12 तक बिठा सकते हो. 12 से जैसे 13वां आदमी हुआ आपके ऊपर GST लग जाएगा. However, the same is allowed when the motor vehicles are used for further supply of such vehicle. Thus, ITC on cars purchased from the manufacturer for making further supply of cars will be allowed. उस केस में रहेगा कि अगर आपने मैन्युफैक्चरर से कार लिया फर्दर सप्लाई करने के लिए तो आपको ITC मिल जाएगा. However, ITC on the cars destroyed in accident will not be allowed as ITC on goods destroyed for whichever reason is specifically blocked under section 17(5)(h). अगर आपका कार डिस्ट्रॉय होता है किसी भी रीज़न से डिस्ट्रॉय हो जाए उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक्ड क्रेडिट है सेक्शन 17(5)(h) में. सेकेंड पार्ट क्या था, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पार्किंग शेड बनाया उसका क्रेडिट के बारे में बात करनी है. सो सेक्शन 17(5)(c) specifically blocks the ITC on works contract service when supplied for construction of an immovable property other than plant and machinery, except where it is an input service for further supply of works contract service, since in this case the car parking shed is not a plant and machinery and the works contract service is not used for further supply of works contract service. ITC thereon will not be allowed. उस पर ITC allowed नहीं रहेगा. Question number 11. With the help of information given below in respect of a manufacturer for the month of September, compute the ITC credited to the electronic credit ledger for the month. Also compute the amount of ITC to be adopted to the output tax liability for the month of September. Ignore interest if any. Outward supply of taxable goods दिया है exclusive of taxes. Taxes नहीं दिया, सिर्फ value of supply दिया है 70,000. आउटवर्ड सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स 40,000 दिया. टोटल टर्नओवर हो गया 1,10,000. इनवर्ड सप्लाईज दिया है GST पेड, इसमें वैल्यू नहीं दिया है, इसमें GST दिया हुआ है. कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई 2,000 रुपये. कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट
आउटवर्ड सप्लाई 1800 रुपये, तो इनएलिजिबल क्रेडिट हो गया है। कैपिटल गुड्स यूज फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट 4200 कॉमन क्रेडिट हो गया। Subject to the information given, assume that all the other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. So let's get to answer number 11. Computation of ITC credited to electronic credit ledger and amount of ITC to be added to the output tax liability for the month of September. सबसे पहले capital goods used exclusively for supply of taxable supply. Since used exclusively for taxable supply, full ITC is available under Rule 43(1)(b). 2000 रुपये पूरा मिल जाएगा। Capital goods used exclusively for exempt supply. Since used exclusively for exempt supply, ITC is not available as per Rule 43(1)(a). Nil हो गया ITC। Third, capital goods used for both taxable and exempt supply, common credit TC से डिनोट करते हैं इसको। कॉमनली यूज फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज रूल 43(1)(c). तो 4200 आपको टोटल क्रेडिट जो है आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर सकते हो। अब इसमें से कुछ रिवर्स होगा धीरे धीरे। कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, कॉमन क्रेडिट जो मंथ ऑफ सितंबर है उसको आप 60, क्योंकि कैपिटल गुड्स है तो 60 इंस्टॉलमेंट में आप उसको बांट दोगे, तो 4200 डिवाइड बाई 60 43(1)(e) के हिसाब से रूल 70 रुपये आया कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज इन द मंथ एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू कॉमन क्रेडिट, दैट इज TR, वेयर E is the aggregate of value of exempt supplies made during the tax period, दैट इज़ 40,000 डिवाइड बाई 1,10,000 करेंगे इंटू 70 रुपये जो कि कॉमन क्रेडिट था, तो 25.45 रुपीज़ का आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दोगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। क्वेश्चन में क्या पूछा था? सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अज्यूम दैट ऑल अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ये ऊपर लिखा है ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ITC टू बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि आप कितना अमाउंट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करोगे, तो हम 25 रुपये 45 पैसा ऐड करेंगे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एज पर रूल 43(1)(h। ठीक है, कॉमन क्रेडिट आया आपका 70 रुपये, टोटल नहीं लेंगे 4200 क्योंकि टोटल पूरे साल का है जो कि बट रहा है। नोट दिया हुआ है प्रायर टू द अमेंडमेंट वाइड नोटिफिकेशन 16/2020 clause F of rule 43(1) provided that amount of ITC at the beginning of a tax period on all common capital goods whose useful life remains during the tax period be denoted as TR and shall be aggregate of TM for all such capital goods. However, clause F has been omitted by notification, consequently term TR being redundant in the formula provided in rule 43(1)(g. However, for the sake of computation of common credit attributable to exempt supplies, value of TM has been used here. It may be noted that as per erstwhile clause F, TM was aggregated as TR was TM, जो भी है। Next is question number 12. X, a manufacturer of roofing sheets, has total ITC of 1,60,000 available with him on 1st of June. He provides the following information pertaining to the goods and services procured during the month of June. Input tax on raw material is rupees 40,000. The raw material is used for both taxable and exempt activity. Second part, input tax on catering services procured for harvest caterers in connection with the housewarming ceremony is rupees 10,000. Input tax on raw material used in manufacture of exempt supplies 2 lakh rupees 20,000. Input tax on cosmetic and plastic surgery of manager of the factory 30,000. Total turnover for the month of June is 60 lakh exclusive of tax. Compute the ITC available for the month of June and net GST payable from electronic credit ledger by X for the month of June. Rate of GST is 18%. Ignore CGST, IGST for the sake of simplicity. Total GST ले लेंगे. Subject to the information given above, assume that all the other conditions necessary for the availability of ITC have been fulfilled. All the purchases are made from registered supplier.
Computation of ITC available and net GST payable from electronic credit cash ledger for the month of June. GST on taxable turnover for the month. Taxable turnover कितना है इनका? 60 लाख रुपए. 60 लाख के ऊपर 18% निकाला, 10,80,000 का आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है. अब इसमें से ITC माइनस करेंगे. ITC अवेलेबल एज ऑन 30 जून इन टर्म्स ऑफ रूल 42. ITC अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना पड़ा हुआ है आपका? 1,60,000 रुपये जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है. अब उसमें ऐड करेंगे इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल इज़ 40,000. रॉ मटेरियल इज़ यूज फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट एक्टिविटी. 40,000 क्रेडिट लेयर में चला जाएगा. ठीक है. अब इसके बाद जो हार्वेस्ट केटरर्स थे उसका ब्लॉक्ड क्रेडिट है. ये भाई जो इसकी क्या बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ये भी इनएलिजिबल ITC है. ये तो जाएगा ही नहीं क्रेडिट लेजर में. फिर चौथा है ये मैनेजर का कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी करवाया है. ये भी ब्लॉक्ड क्रेडिट है. इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. अब सिर्फ जो 40,000 है उसमें से लेस कर दोगे आप कुछ अमाउंट जो कि नहीं जाएगा. ITC आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई रेफर्ड वर्किंग नोट. इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल 40,000 रुपीज़. 40,000 का कॉमन क्रेडिट डिवाइड बाई 60 40,000 में सॉरी पहले 40,000 में से 2 लाख डिवाइड बाई 62 लैक्स करोगे आप, क्योंकि 2 लाख का आपका एग्जेम्प्ट टर्नओवर का सप्लाई है और 20 टोटल आपका टर्नओवर है 60 लैक्स का. तो आपका 1,290 रुपये जो है वो एग्जेम्प्ट वाले से रिलेटेड है, इसलिए आप उसको रिवर्स कर दोगे, इसलिए उसको आप माइनस कर दोगे 40,000 में से. तो आपका जो टोटल क्रेडिट आया वो आया 1,98,710. तो 10,80,000 में से 1,98,710 का आपको क्रेडिट मिल गया. नेट GST पेएबल जो कैश में जाएगा वो जाएगा 881,290. क्योंकि आपका जो 40,000 था वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट एक्टिविटी दोनों में यूज़ हुआ, तो उसमें से जो एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन था ITC का उसको आप हटा दोगे. उसको हटाने के लिए आप क्या करोगे? एग्जेम्प्ट और टोटल टर्नओवर का रेशो ले लोगे और उसमें से उस चीज़ को माइनस कर दोगे. बात खत्म. नोट्स पे आते हैं. नोट्स 1. Being used in the course or furtherance of business, input tax on raw material is available as ITC and is credited to the electronic credit ledger section 16(1). Note 2. ITC on outdoor catering services is blocked in terms of section 17(5) if the same is not used for making an outward supply of outdoor catering or as an element of a taxable composite or mixed supply. Hence, the same is not credited to electronic credit ledger, Rule 42. Third note, input tax on inputs used for making exempt supplies is not available as ITC and thus not credited to the electronic credit ledger in terms of Rule 42. Fourth point, ITC on cosmetic and plastic surgery is blocked in terms of Section 17(5) if the same are not used for making the same category of outward supply or as an element of taxable composite or mixed supply. Hence the same is not credited to electronic credit ledger, Rule 42. ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13. Sarani Weavers at Pune, Maharashtra is a registered input service distributor and intends to distribute ITC for the month of March. The following are the details available for such distributor. उसकी ब्रांच दी हुई है, 4 ब्रांच हैं. एक गंगानगर ब्रांच है, एक मधुगिरी ब्रांच है, कोसाला UP, मुंबई महाराष्ट्र. टर्नओवर दिया है लास्ट क्वार्टर का. ITC स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू द ब्रांच. जो स्पेसिफिक ITC है उस ब्रांच का वो 12,000, 3,000, 3,000 है और इसका 1,50,000, 15,000, 15,000 है. ITC अवेलेबल ऑन इनपुट सर्विसेज यूज कॉमनली बाय ऑल द ब्रांचेस. सारे ब्रांचेस ने जो यूज़ किया है वो है 60-60-120. तो इसको टर्नओवर के बेसिस पे बांट देंगे. ITC ऑफ 10,000 पर्टेनिंग टू मार्च लास्ट ईयर वाज इनएडवर्टली नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. 10,000 का नहीं लिया था तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि मार्च का आपको मार्च में लेना चाहिए था, अब नहीं मिलेगा. वेदर द सेम कैन बी कंसिडर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्च इन दिस ईयर? नो. मधुगिरी कर्नाटका ब्रांचेस यूज इनपुट सर्विसेज टू मैन्युफैक्चर एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स. एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स हैं इनके, मधुगिरी और कर्नाटका ब्रांच के. मधुगिरी कर्नाटका एक ही ब्रांच है जो इनपुट सर्विसेज यूज़ करती है मैन्युफैक्चर्ड एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट्स के लिए. टर्नओवर एक्सक्लूड्स ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पेएबल टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट.
Now we have to determine the manner of ITC distribution. Answer number 13. As per section 20 read with the rule 39, total GST credit कितना है आपके पास? 18,000 specifically attributable to Ganganagar branch, Rajasthan will be distributed as IGST credit of 18,000 only to Ganganagar branch, Rajasthan, since recipient and ISD are located in different states. अभी स्पेसिफिकली कितना था गंगानगर का? 12,000, 3,000, 3,000, मतलब 12 और 6 18,000. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ISD है वो रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में और जो गंगानगर ब्रांच है वो राजस्थान की है, तो दोनों का डिफरेंट स्टेट हो गया है, इसीलिए IGST के तौर पे उसको देना पड़ेगा टोटल क्रेडिट. तो 18,000 IGST में जाएगा गंगानगर ब्रांच के पास. ठीक है. सेकेंड पॉइंट में IGST credit of rupees 1,50,000, CGST credit of 15,000 and SGST credit of 50,000 which is specifically attributable to Mumbai branch, Maharashtra will be distribute IGST 150 ही जाएगा, CGST 15,000 ही जाएगा और SGST 15,000 ही जाएगा, क्योंकि दोनों ब्रांच और जो ISD है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो दोनों सेम स्टेट में है, इसलिए रिस्पेक्टिवली उस हेड में ही जाएगा. सिंस रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन द सेम स्टेट इन विच ISD इज लोकेटेड. ये 2 पॉइंट्स आपने कवर कर लिए, हट गए. अब तीसरे पॉइंट पे हो. CGST क्रेडिट ऑफ 60,000, SGST 60,000 and IGST 120,000 हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 ब्रांचेस, गंगानगर, कोसाला और मुंबई. क्योंकि कर्नाटका ब्रांच के पास इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड गुड्स प्रोवाइड करता है. हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 ब्रांचेस एंड मुंबई ब्रांच महाराष्ट्र इन प्रपोर्शन ऑफ द टर्नओवर ऑफ द लास्ट क्वार्टर. लास्ट क्वार्टर का टर्नओवर पकड़ेंगे, तीनों को डिवाइड कर देंगे, CGST, SGST, IGST बराबर. अभी गंगानगर ब्रांच के बारे में बात करते हैं. गंगानगर ब्रांच में 2,40,000 टोटल जो IGST है वो है 2,40,000 का. इनका टर्नओवर है 10 लाख का और टोटल टर्नओवर है 50 लाख का. तो 48,000 का इनका ITC आ गया, वो अलग कर दिया. अभी मधुगिरी ब्रांच में टोटल तो ITC आपका 2,40,000 हो रहा है. 60-60 120 ये वाला जो अवेलेबल ऑन इनपुट सर्विसेज यूज कॉमनली बाय ऑल ब्रांचेस. जो एग्जाम्प्ट वाला था उसको कुछ नहीं देंगे, उसको बोलेंगे बेटा बैठ जा चुपचाप. अभी 2,40,000 का है इंटू 5 लाख मधुगिरी का डिवाइड बाय 50. अबे मधुगिरी तो एग्जाम्प्ट था ना. The credit attributable to a recipient is distributed even if such recipient is making exempt. अच्छा, जो attributable credit है वो बटेगा. अरे यार ठीक है. The credit attributable to a resident is distributed even if such recipient is making exempt supply. उसको बांट दो, 24,000 दे दो उसको कि भाई ये आपके पोर्शन का है, आप रख लो. फिर कोसाला ब्रांच आएगी. कोसाला ब्रांच को 2,40,000 में से 15 लाख डिवाइड बाय 50 लाख 72,000 का IGST का क्रेडिट मिलेगा. राजस्थान को भी IGST मिलेगा, कर्नाटक को भी IGST मिलेगा, उत्तर प्रदेश वाले को भी IGST मिलेगा. अभी मुंबई ब्रांच सेम स्टेट है. 60,000 का अलग निकालो, 60,000 का अलग निकालो और 120 लाख का अलग निकालो. 60,000 इंटू 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख. 60,000 इंटू 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख. 1,20,000 इंटू 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख. 24,000, 48,000. 24,000 CGST, 24,000 SGST, 48,000 IGST क्रेडिट. लास्ट पॉइंट, ITC ऑफ 10,000 ऑफ मार्च, जो मार्च का क्रेडिट था, कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मार्च दिस ईयर एज ITC अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मार्च इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ. उसी मंथ का उसी मंथ में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, आप दूसरे मंथ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14. जॉर्ज प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एट केरला who pays GST under regular scheme में रजिस्टर्ड है, हैज़ मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड. उसने ये ट्रांजेक्शन्स किए, परचेज़ किया और सेल किया. 5 लाख रुपए का परचेज़ किया, परचेज इज मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इन न्यू दिल्ली. 2,50,000 का परचेज़ किया, परचेज इज मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इन त्रिवेंद्रम केरला. सेल किया 10 लाख रुपए का, सेल्स मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इन न्यू दिल्ली वाले बंदे को एक सेल किया 10 लाख का. 8 लाख रुपए सेल्स मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इन त्रिवेंद्रम और 8 लाख का वहाँ पे सेल किया. रेट दिया हुआ 18% का. द कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद ऑल द कंडीशंस फॉर अवेलिंग द ITC. द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस बैलेंसेज
available with it on the first day of the tax period is provided by the company. ITC का डिटेल दिया हुआ है, CGST SGST में टैक्सेस में 50,000 30,000 1 लाख दिया हुआ है, इंटरेस्ट में कुछ अमाउंट पड़ा है, पेनल्टी में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है. कंप्यूट द मिनिमम नेट GST पेएबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. कैश लेजर से आपको कितना पे करना पड़ेगा ये बताना है हमको. बाय जॉर्ज प्राइवेट लिमिटेड फॉर द टैक्स पीरियड और ऑल्सो ITC टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टैक्स पीरियड, और कैरी फॉरवर्ड कितना होगा ये भी बताना है. सो कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम नेट CGST SGST पेएबल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और ये जो अमाउंट दिया है ये ITC क्रेडिट लेजर का दिया हुआ है क्वेश्चन. अब यहाँ पे चार्ट बना लेंगे. पर्टिकुलर्स अमाउंट मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई, CGST SGST IGST 3 पार्ट लिख दिया. सबसे पहले सेल किया उसने आउटसाइड केरल. जॉर्ज लिमिटेड कहाँ रजिस्टर्ड है? केरल में. तो दिल्ली में सेल किया जो उसने 10 लाख का, उस पर IGST लगेगा 1,80,000 का, ठीक है. और एक सेल किया त्रिवेंद्रम में 8 लाख का, उस पर CGST SGST लगेगा 18% के हिसाब से 72. तो टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितना हो गया? 72 लाख, 72,000 और 1,80,000. अभी इसमें से ITC माइनस करेंगे. ITC कितना माइनस होगा? ITC अवेलेबल ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड फॉर सेट ऑफ, रेफर वर्किंग नोट बिलो. ये वर्किंग नोट दिया. ओपनिंग ITC कितना है? 50,000 30,000 1 लाख रुपये. परचेज़ किया दिल्ली से 5 लाख रुपए का, दिल्ली से परचेज़ किया तो IGST मिलेगा आपको. 5 लाख का 18% 90,000, IGST में जोड़ दो 1,90,000 हो गया. एक परचेज़ किया त्रिवेंद्रम का, उस पर CGST SGST मिलेगा, उसको ऐड कर दो 30,000 और 50,000 में, तो 2,50,000 का 22,500 22,500. टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया? 72,500 52,500 और 1,90,000. यहाँ पे जो आया 72,000, इसमें से 72,000 माइनस हो जाएगा. CGST का आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 0 हो गया, 500 रुपये बचा है इसमें, ठीक है. अभी इसके बाद इसका क्रेडिट उठा के ले जाओ. सबसे पहले SGST का पकड़ो. SGST का 52,000 था, 52,500 पूरा ले लो, 52,500. ये जो इनपुट था ये 0 हो गया. अब हमारे पास 1,90,000 रुपये IGST में बचा है और 500 रुपये इसमें बचा है CGST में. तो 1,90,000 में से 1,80,000 तो आप IGST में यूज़ कर लोगे, और जो बचा हुआ 10,000 है वो आप इसको दे दो SGST वाले को. तो SGST का यूटिलाइज़ कितना हो गया? 62,500. बाकी का जो बचा है 9,500 रुपये वो आपको कैश में पे करना पड़ेगा SGST का. तो यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड हुआ सिर्फ CGST का 500 रुपये, बाकी में कैरी फॉरवर्ड SGST में नील, IGST में नील. क्योंकि जो CGST SGST का ITC होता है ना वो एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो पाता, इसीलिए उसको कैरी फॉरवर्ड करा दिया और यहाँ पे पेमेंट करवा दिया. नोट: since a sufficient balance of ITC of CGST is available for paying CGST liability and cross utilization of ITC of CGST and SGST is not allowed, ITC of IGST has been used to pay SGST after paying IGST liability to minimize cash outflow. Interest and penalty paid are not available as credit for output tax liability under GST. It can only be used against corresponding interest or penalty used under the GST law. ठीक है. बाकी के क्वेश्चन